गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों फ्लोरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, जो आपके प्रैक्टिकल सेकंड पेपर के प्रैक्टिकल का सिलेबस है। सेकंड पेपर है ना, जो प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी पोर्शन है। ठीक है बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के फ्लोरल डिस्क्रिप्शन को। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, हाँ, जो सबसे पहले तो ये प्रश्न किस रूप में आएगा, है ना। यू हैव टू डिस्क्राइब फ्लावर। ठीक है, एंड व्हाइल डिस्क्राइबिंग फ्लावर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इनफ्लोरेसेंस एंड अप टू द सीड्स, बट हियर वी हैव डिस्क्राइब्ड और वी विल डिस्क्राइब ओनली 5 components which are a flower itself and its 4 whorls which are in the form of calyx, corolla, androecium and gynoecium. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद यू हैव टू राइट फ्लोरल फार्मूला, यू हैव टू ड्रा फ्लोरल डायग्राम एंड you have to draw a vertical section of a flower, and each of these 3 components again describe the flower to some extent. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए यू कैन सी टेट्रामेरस फ्लावर with free sepals and petals and a cruciferous form. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो टेट्रामेरस क्या है कि इफ अ फ्लावर हैज 4 sepals and 4 petals, और if a flower consists of a calyx having 4 sepals and corolla having 4 petals, ठीक है, a flower is said to be a tetramerous flower, and if the petals are arranged in a क्रॉस मैनर, ठीक है, क्रॉस की तरह ये दिखेंगे, तो सच अ फ्लावर इज सेड टू बी अ cruciform flower, and the members and the plant is called a crucifer. ठीक है, crucifer which is the characteristic feature of the family Brassicaceae. तो ये आपको सिर्फ इमेज आइडेंटिफिकेशन के लिए दिखाया गया है, क्योंकि हम एग्जाम में आप लोगों को जब या तो फ्लावर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है, और अगर फ्लावर अवेलेबल नहीं होगा तो वी सिंपली शो यू अ इमेज एंड वी आस्क यू टू आइडेंटिफाई इट एंड देन टू डिस्क्राइब इट. ठीक है, सबसे पहले आते हैं बच्चों फ्लावर. फ्लावर इज ebracteate. Ebracteate means it has no bract. ठीक है, and ebracteolate means it has no bracteole. The bract is a leaf-like structure present at base of flower. चाहे वो फ्लावर सेसाइल हो, सबसेसाइल हो, चाहे पेडिसिलेट हो, ठीक है, उसके बेस पर एक छोटा या बड़ा एक लीफ के आकार का एक स्ट्रक्चर रहता है, एक ऑर्गन रहता है, उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है, और अगर फ्लावर हमारा सबसेसाइल या पेडिसिलेट होगा, मींस विद स्टॉक होगा, तो पेडिसेल के ऊपर भी कई बार एक छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, उसको हम ब्रैक्टियोल बोलते हैं बच्चों. ठीक है, इफ अ फ्लावर हैज ब्रैक्टियोल इट इज सेड टू बी ब्रैक्टियोलेट. If it doesn't have, it is said to be ebracteolate. And pedicellate means the flower is with a stalk, and the stalk of flower is called pedicel. Thus, the flower is pedicellate. Complete means if a flower has all the 4 floral whorls in the form of calyx, corolla, androecium, and gynoecium, it is said to be a complete flower. A tetramerous means if the number of sepals in calyx are 4 and the number of petals in corolla are 4, a flower is said to be tetramerous, and it is a characteristic of dicot plants and a little unusual behavior, because what do you see in majority of the dicotyledonous angiosperms, flowers are pentamerous. ठीक है, but in a few plants, for example, in family Brassicaceae, all the members of family Brassicaceae are tetramerous, whereas there are few more plants in some other families which are tetramerous in nature.
while majority of the flowers of dicotyledonous plants are pentamerous. Now, regarding the symmetry of flower actinomorphic, if we cut a flower from any plane, if we get two equal halves, the flower is said to be actinomorphic. Bisexual, if a flower carries both sexes, ठीक है, both sexes in the form of androecium and gynoecium, where androecium consists of filaments and androecium consists of stamens, a group of stamens, and stamens in turn consist of filament and anthers, whereas gynoecium consists of a group of carpels or pistils, which in turn consist of ovary, style and स्टिग्मा. हाइपोकाइनस, अब इस शब्द पे थोड़ा सा स्ट्रेस देना है बच्चों, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं. A floral condition is said to be hypogynous if the three whorls in the form of calyx, corolla and androecium, they are arising from base of gynoecium. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो उस सूरत में हम फ्लावर को बोलेंगे दिस इज हाइपोगाइनस. हाइपोगाइनस का मतलब गाइनस मींस फीमेल पोर्शन एंड फीमेल पोर्शन इज ओवरी एट बेस. ओवरी के नीचे से अगर निकलते हैं एंड्रोशिया, इस ओवरी के नीचे से अगर हमारे पेटल्स और सेपल्स निकलते हैं, ठीक है, उस सूरत में क्या होता है, द फ्लावर इज सेड टू बी हाइपोगाइनस एंड इन दैट केस ओवरी इज सेड टू बी सुपीरियर एंड ऑल अदर थ्री फ्लोरल वॉल्स आर सेड टू बी इंफीरियर. तो आगे जब हम एक एक सेगमेंट की हम कैरेक्टर्स देखेंगे तो हम लास्ट में क्या देखेंगे, ओवरी सुपीरियर है और उससे पहले जो तीन हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, वो इंफीरियर होंगे बच्चों. तो ये सिंगल शब्द कई चीजों को एक्सप्रेस कर लेता है, तो कृपया ये ध्यान देना है, ठीक है. और इसके अपोजिट बाई चांस आता है एपिगाइनस कंडीशन. इसका मतलब है कि कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम दे आर अराइजिंग फ्रॉम अ पोजीशन अबव ओवरी, ठीक है. उस सूरत में फ्लोरल कंडीशन क्या होगा, एपिगाइनस, ठीक है. ओवरी का कंडीशन क्या हो गया, इंफीरियर, और बाकी थ्री फ्लोरल वॉल्स का कंडीशन क्या हो गया, सुपीरियर. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. नेक्स्ट टर्म इज हेमीसाइक्लिक. दिस हैज बीन मॉडिफाइड, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा सा मैं हल्का सा डिस्कस करना चाहूंगा. एक शब्द आता है बच्चों साइक्लिक, एसाइक्लिक और हेमीसाइक्लिक. ये जो शब्द होते हैं, ये जो फ्लोरल वॉल्स है, स्पेशली थ्री, आउटर थ्री, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम का पोजीशन के बेस पर ये शब्द दिया गया है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना है. On the basis of the position of calyx, corolla and androcia from center, if the three whorls are situated at equal distance, what I mean to say, if the sepals in calyx are situated at equal distance from center, so we can say that these are arranged in a cyclic manner. ठीक है. और अगर कैलिक्स के जो सेपल्स हैं और कोरोला के जो पेटल्स हैं और एंड्रोशियम के जो स्टेमन्स हैं, वो सारे के सारे तीनों फ्लोरल वॉल्स अगर अपने अपने जगह में इक्वली या इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सेंटर से, या हम बोलेंगे कि अगर तीनों साइक्लिक मैनर में अरेंज्ड है, तो उस समय में हम साइक्लिक वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. And if all the three floral whorls are not arranged in a cyclic manner in their respective whorl, a flower is said to be acyclic. And if some of the floral whorls are arranged in a cyclic manner, while some others are not arranged in a cyclic manner, in such case a term is used hemicyclic condition. And here the flower of Brassica campestris is hemicyclic. क्यों बच्चों, क्योंकि जो कैलिक्स के अंदर सेपल्स है वो इक्वली डिस्टेंटेड नहीं है. ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड नहीं है. क्यों बच्चों, क्योंकि हमें मालूम है कि दो सेपल्स बाहर की तरफ है, दो सेपल्स थोड़ा अंदर की तरफ अरेंज्ड है. जब
कोरोला के अंदर जो पेटल्स आ रहे हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे सिचुएटेड है और इन साइक्लिक मैनर में सिचुएटेड है, whereas the stamens in case of Androsia again they are having tetradynamous condition, means there are total 6 number of stamens, out of which 2 stamens are arranged in outer subwhorl whereas 4 stamens are arranged in inner subwhorl. इसका मतलब ये भी साइक्लिक मैनर में नहीं है, ठीक है। तो उस सूरत में हम शब्द यूज करते हैं हेमीसाइक्लिक कंडीशन, ठीक है। और इंडिविजुअल वर्ल को जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे बच्चों उनको भी हम साइक्लिक बोलेंगे और जो नहीं होंगे उस सूरत में उनको हम नॉन साइक्लिक बोलेंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों। फिर भी कुछ कंफ्यूजन आता है तो आई एम हियर टू सर्व यू पीपल, टू सेटिस्फाई योर क्वेरीज। यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉल मी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। And last character is sulfur smelling. It is a characteristic feature of the members of family Brassicaceae. Because of presence of or because of synthesis of some sulfur compounds, they emit sulfurous smell. सल्फर की तरह कुछ ये खुशबू, ऑडोर, अरोमा बिखेरते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्लावर। इसके बाद आएगा सेपल्स, कैलिक्स। कैलिक्स के केस में देयर आर 4 सेपल्स, ये हमको मालूम है। पॉलीसेपलस कंडीशन मीन सेपल्स आर फ्री, अगर नहीं होते ये फ्यूज होते हम यूज करते हैं गेमोसेपलस कंडीशन। नॉन साइक्लिक, ठीक है बच्चों, क्योंकि फ्लावर हेमीसाइक्लिक है, ठीक है। और जो कैलिक्स के में जो सेपल्स है वो इक्वल डिस्टेंस पे अरेंज नहीं है। और कैसे अरेंज है? अरेंज इन 2 वॉल्स ऑफ 2 सेपल ईच, out of which outer whorl is antero-posterior in position, whereas inner whorl is lateral. The 2 sepals present in inner whorl are lateral in position. Then the shape of sepals, it is lanceolate. Lanceolate structure means a convex lens-like structure. ठीक है। Estivation is imbricated or imbricate. Estivation means the arrangement of individual segments of a particular whorl, especially the calyx and corolla, with respect to each other. And here, in case of Brassica campestris, calyx estivation is imbricate, where 2 sepals, 2 outer sepals overlap 2 inner sepals completely. ठीक है। इसके बारे में भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगा तो मुझे मैसेज कर देना है, मुझसे पूछ लेना है बच्चों, ठीक है। मार्जिन एंटायर, मार्जिन एंटायर मींस मार्जिन इज स्मूथ, ठीक है। एपेक्स एक्यूमिनेट, इफ a apex is tapering and has a end like this which is pointed but not sharply pointed, it is said to be acuminate. कई केसेस में क्या होता है बच्चों, जो एंड है वो बिल्कुल फाइन पॉइंटेड होता है। इन दैट केस अ वर्ड acute is used, but ACUTE. But here in case of Brassica campestris, the tip of calyx is acuminate. Because floral condition is hypogynous, calyx is inferior. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। Petaloid, लास्ट इज, इसका स्पेलिंग आप लोग TALOID करो या LLOID करो, एक ही बात है। कैलिक्स जनरली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन ये किसी और कलर का होगा बाय चांस अदर देन ग्रीन, जैसे कि आपका ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के केस में है। हियर यू कैन सी द कलर ऑफ सेपल्स, these are not green but you can say these are some having some other colors, and here it is हम बोलते कच्चा पीला या ग्रीनिश येलोइश और येलोइश ग्रीनिश। In that case, the word petaloid is used. Then comes corolla. Petals are 4 and polypetalous means petals are free. Alternisepalous, इसके लिए अल्टरनिसेपलस का मतलब हुआ इनका पोजीशन अगर 2 पेटल्स के बीच में है। ये फ्लोरल डायग्राम से मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो हम उसको एंटीसेपलस कंडीशन भी बोलते हैं। ये मैं आगे जब फ्लोरल डायग्राम दिखाऊंगा बच्चों वहां पर ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड इट इज साइक्लिक बिकॉज ऑल द 4 पेटल्स आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर और दीज आर अरेंज्ड in a cyclic manner.
एंड इट इज क्रूसिफॉर्म, ठीक है। क्रूसिफॉर्म मीन्स क्रूसिफॉर्म फ्लावर के लिए, क्रूसिफॉर्म होने के लिए एक कंडीशन है कि इनके पास 4 सेपल्स और 4 पेटल्स होने चाहिए, जो कि ऊपर से देखने पर हमको एक क्रॉस की तरह नजर आता है, ठीक है। और अगेन दिस वर्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली ब्रासिकेसी। येलो इन कलर, एक्सर्टेड, एक्सर्टेड का मतलब हुआ जो पेटल्स हैं वो सेपल से लंबे हैं और सेपल से बाहर झांकते हुए नजर आते हैं, उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं एक्सर्टेड। अगर पेटल्स कई बारी सेपल से छोटे रहते हैं तो अब उनको इंसर्टेड या इंक्लूडेड भी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है रिफ्लेक्स्ड। रिफ्लेक्स्ड मींस, रिफ्लेक्स को समझने के लिए, इस शब्द को समझने के लिए एक डायग्राम मुझे ड्रा करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। जो पेटल होता है वो 2 हिस्सों से मिलकर बना होता है बच्चों। जो निचला हिस्सा है जिसको हम क्लॉ बोलते हैं और ऊपर का हिस्सा होता है जिसको हम ब्लेड बोलते हैं। सब पेटल्स 2 पार्ट से बने होते हैं किसी भी फ्लावर के, ठीक है। हालांकि द साइज एंड शेप ऑफ ब्लेड एंड साइज एंड शेप ऑफ क्लॉ मे वेरी और वेरीज इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो ब्रासिक कैम्पेस्ट्रिस के केस में क्या है बच्चों, जो लोअर पोर्शन है क्लॉ, ठीक है, और उसके बाद जब ब्लेड शुरू होता है तो ब्लेड एकदम से बाहर की तरफ वो मुड़ जाता है बच्चों, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। व्हेन इट गेट्स ओल्ड हाउएवर, ठीक है, सो सच अ कंडीशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्स्ड, मींस व्हेन द ब्लेड मेक्स अ शार्प एंगल विद रिस्पेक्ट टू क्लॉ, दैट इट इज सेड टू बी रिफ्लेक्स्ड, ठीक है। लेकिन हाफ के ऊपर से जैसे, ठीक है, क्योंकि अगर ये बिल्कुल नीचे से बनाता है एंगल तो हम एक और टर्म यूज करते हैं रोटेट, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फैमिली कन्वोल्वुलेसी। जो कन्वोल्वुलस देखा होगा आप लोगों ने, आइपोमिया देखा होगा, उसमें जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं रोटेट फ्लावर, ठीक है। बट हियर इन ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इट इज रिफ्लेक्स्ड। एस्टिवेशन इज अ वेलवेट, और वेलवेट एस्टिवेशन का मतलब हुआ इफ द पेटल्स, पेटल्स का जो एजिस होते हैं बच्चों, एजिस आर नॉट ओवरलैपिंग, ठीक है, दे आर वेरी मच क्लोज टू ईच अदर बट अगेन नॉन ओवरलैपिंग, ऑलमोस्ट इन टच विद ईच अदर, ठीक है, ऑल द 4 सेगमेंट्स ऑफ द कोरोला और ऑल द 4 पेटल्स, ठीक है। जो एस्टिवेशन के ऊपर भी मैं अलग से मैं एक लेक्चर ड्रा कर आपको बता दूंगा बच्चों, ठीक है। तो फिर भी कुछ और कंफ्यूजन रहता है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। नेक्स्ट इज inferior. If a flower is hypokynous, in that case ovary is superior and all other 3 floral walls are inferior. So corolla is also inferior here. Then comes androecium. Stamens are 6 and stamen consists of filament and anthers, है ना? And polyandrous condition is there, means stamens are free. अगर ये फ्यूज होंगे तो बहुत अलग अलग टर्म यूज होते हैं बच्चों, एक सिनेंड्रस है, सिनजिनिशियस है, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस, पॉलीएडल्फस कंडीशंस, ठीक है। वो मैं फिर से अलग सा एक लेक्चर आपको छोटा सा एक बना के दे दूंगा। बट हियर स्टेमन्स आर फ्री, दस द टर्म यूज्ड इज अ पॉलीएंड्रस कंडीशन एंड tetradinomous condition is there. That means there are 6 stamens, out of which 2 shorter stamens are present in outer wall and which are lateral in position. Lateral in position, whereas 4 longer stamens they form inner wall and these are antero posterior in position. जब हम फ्लोरल डायग्राम करेंगे वहां पर ये क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। एंथर्स आर बाइथिकस और मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में एंथर्स बाइथिकस ही होते हैं, मींस एंथर कंसिस्ट ऑफ 2 लोक्यूल्स, 2 कंपार्टमेंट्स और 2 थिका, ठीक है। So anthers are bithecus, basifixed. If an anther is attached to filament from base, it is said to be basifixed. ठीक है। इसके अदर टाइप्स होते हैं बच्चों, डोर्सिफिक्स्ड, एडनेट एंथर, वर्सेटाइल एंथर, ये भी मैं अलग से आप लोगों को कभी लेक्चर दे दूंगा। बट हियर इट इज basifixed. Descends by longitudinal slits.
And descents may take place either by transverse slits or some apical pores, or generally in majority of the cases it occurs by longitudinal slits. Means anthers में लंबाई में कुछ नेचुरल लाइन ऑफ डिसेंसेस होते हैं. जब डिसेंस की बारी आती है तो वो ओपन हो जाते हैं और वहां से हमारे पोलन ग्रेन्स लिबरेट हो जाते हैं. ठीक है. जो आउटर टू शॉर्टर स्टेमन्स है उनका जो एंथर्स होंगे वो इंट्रोसली डिसेंस होते हैं. मींस अंदर की तरफ से डिसेंस होते हैं. जबकि जो 4 लंबे स्टेमन्स है इनर वर्ल्ड में, है ना, जिनका पोजीशन एंटीरो पोस्टीरियर है, वो एक्सट्रोस है. मींस वो जब लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेंगे तो वो बाहर की तरफ से स्प्लिट होते हैं, डिसेंस होता है. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों. 4 ग्रीन डिस्क लाइक नेक्टरीज प्रेजेंट एट बेस ऑफ ईच स्टेमन. ईच स्टेमन नहीं बच्चों, जो 2 आउटर शॉर्टर स्टेमन है उनके बेस पे एक एक नेक्टरी होगा. जो इनर 4 स्टेमन्स है जो कि 2-2 के पेयर के रूप में रहेगा. 2 एंटीरियर साइड में होंगे, 2 पोस्टीरियर साइड में होंगे. उनके बेस पर भी पेयर के बेस पे एक एक नेक्टरी रहेगा. और नेक्टरी क्या होता है बच्चों, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना. ये आप हनी बी से पूछ लो कि माय डियर हनी बीज व्हाट आर नेक्टरीज, काइंडली टेल अस. Then comes lastly gynoecium. Gynoecium means a female portion. It is bicarpellary, means it is consisting of 2 carpels or 2 pistils, and a carpel or pistil consists of ovary, style and stigma. So here we are going to describe these. Syn carpus condition means the carpels are fused. अगर carpels fused नहीं होंगे तो हम एक term use करते हैं apocarpus, but here they are fused, thus the term syn carpus is used. Ovary is superior. Why बच्चों? Again I will tell you, because flower is hypogynous. ठीक है. In that case ovary is superior and other 3 floral whorls are inferior in nature. And it is unilocular but appears to be a bilocular because of formation of a false septum longitudinally, है ना. And that septum is called rhapillum. आप लोग क्या करोगे बच्चों, जो सरसों का फ्रूट होता है सिलिकुआ, उसको आप स्प्लिट करते हो तो बीच में आप लोगों को कई बार आपको बीच में पतला सा एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नजर आता है, एक झिल्ली, वो रेपलम कहलाता है बच्चों. और वो फाल्स सेप्टम होता है, वो ट्रू सेप्टम नहीं होता है. और उसकी वजह से हमको लगता है कि जो ये ओवरी है, फ्रूट इज ओवरी बच्चों, है ना. जो सिलिकॉन नजर आता है वो ओवरी, असल में लंबा ओवरी होता है ब्रासिकेसी केस में ना ज्यादातर. तो हमको लगता है कि इसके 2 कंपार्टमेंट है, असल में इसका एक ही कंपार्टमेंट होता है बच्चों. It is unilocular, and because of presence of a false septum or formation of a false septum called rhapillum, it appears bilocular. And ovary is long. ठीक है, ovary is long and cylindrical with many ovules. Placentation is a parietal. Other types of placentations found in angiosperms are basal placentation, axial placentation, marginal placentation, सुपरफिशियल प्लासेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन. तो इस पर भी मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगा. जब हम आगे कभी लेक्चर में प्लासेंटेशन के ऊपर अलग से मैं लेक्चर दे दूंगा बच्चों. ठीक है. एंड लास्टली एक कैरेक्टर आएगा स्टाइल के बारे में. बिल्कुल एक शब्द लिखा है, स्टाइल इज शॉर्ट. जब हम फ्लावर का वर्टिकल सेक्शन आगे देखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा. फ्लावर में स्टाइल शॉर्ट नजर आ रहा है. स्टिग्मा इज बाइफिड. स्टिग्मा बाइफिड हमारे को तभी नजर आएगा जब हम नजदीक से देखेंगे बच्चों. हम बाइफिड बोलते हैं, हमको लगता है कि सांप का जीभ की तरह ऐसे बाइफिड होना चाहिए. ये जरूरी नहीं है बच्चों, ये भी बाइफिड स्ट्रक्चर है. आप लोग क्या देखोगे, जो स्टिग्मा है विच इज मेंट फॉर वेलकमिंग पोलन ग्रेन्स, है ना, इट इज प्रेजेंट एट टॉप. यहाँ पर आप हल्का सा बाइफिड स्ट्रक्चर नजर आता है. ये आप एक्चुअल कंडीशन में जब फ्लावर को देखोगे तभी नजर आएगा. यहां पर मैं किसी भी तरीके से मैं आपको बाइफिड स्ट्रक्चर दिखाने में असमर्थ रहूंगा. ठीक है, लेकिन स्टिग्मा बाइफिड होता है बच्चों. अब आते हैं बच्चों वीएस ऑफ फ्लावर, जो अपने आप में कुछ स्टोरी बता रहा है. इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि समय होने वाला है. ठीक है. दिस इज थैलेमस. थैलेमस और रिसेप्टेकल मींस अ टिप ऑफ एक्सिस ऑन विच द फ्लोरल वॉल्स अराइज. ठीक है. हम लोग यहां क्या देख रहे हैं
दिस इज अ लॉन्ग ओवरी having repulum and many ovules. Having a placentation called parietal placentation, has a short style and stigma at top which is bifurcated or bifid. ठीक है? So the other three floral whorls called calyx formed by sepals, corolla formed by petals, and endoecium formed by stamens. These are arising from below the ovary. इसका क्या मतलब है बच्चों? Petals, stamens, and sepals are calyx, corolla, and endoecium are inferior, whereas ovary is superior. ठीक है? एक और कंडीशन नजर आ रहा हमारे को, एंथर्स आर बेसी फिक्स्ड. एंथर्स बेस से फिक्स्ड हैं. ठीक है? अगर ये डोर्सल साइड से फिक्स होते हैं इसको डोर्सी फिक्स्ड बोलते हैं. अगर ये थ्रू आउट द लेंथ फिक्स होते हैं तो इसको हम एडनेट कंडीशन बोलते हैं. ठीक है? और अगर बिल्कुल एक पतले, जब कई बार क्या होता है, फिलामेंट का जो टिप बिल्कुल पतला सा होता है. ठीक है? और एंथर बड़े ही मुश्किल से इसके ऊपर फिक्स रहता है बच्चों. उस केस में इसको वर्सेटाइल बोलते हैं, जो कि फैमिली पोएसी, मोनोकॉट फैमिली पोएसी, जिसमें हमारे छल्ली, चावल, गेहूं, बाकी घास आते हैं, उनमें जो एंथर होगा बच्चों हमेशा वर्सेटाइल होता है. ये याद रखना है. नेक्स्ट इज फ्लोरल डायग्राम. अब यहां पर मैं थोड़ा सा फिर से फोकस करूंगा मेरे प्यारे बच्चों. मदर एक्सिस, दिस इज मदर एक्सिस. द साइड टुवर्ड्स मदर एक्सिस इज सेड टू बी पोस्टीरियर. ठीक है? अवे फ्रॉम मदर एक्सिस इज सेड टू बी एंटीरियर, एंड दिस एंड दिस साइड्स आर सेड टू बी लेटरल. ठीक है? तो अब मैं थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि शायद टाइम अब कम बचा है. जो मदर एक्सिस होता है बच्चों, ये एक सबसे पहला पहचान होता है कि फ्लावर इज एक्सिलरी. कोई फ्लावर टर्मिनल होगा या इनफ्लोरेसेंस टर्मिनल होगा तो उस सूरत में मदर एक्सिस यूज नहीं किया जाता है. और मदर एक्सिस होता क्या बच्चों? द ब्रांच और द स्टेम इटसेल्फ. ठीक है? फ्रॉम विच द फ्लावर इज अराइजिंग. ठीक है प्यारे बच्चों? तो वो मदर एक्सिस कहलाता है. हमको मालूम है 4 सेपल्स हैं कैलिक्स में, जिसमें 2 एंटीरो पोस्टीरियर है, एंटीरो पोस्टीरियर, और 2 लेटरल है. और जो एंटीरो पोस्टीरियर है, इन्होंने लेटरल सेपल्स को ओवरलैप किया है बच्चों. ठीक है? ये ध्यान देना है. और आप लोगों को क्या करना है, कॉम्पास या जो प्रकार बोलते हैं ना, उसको यूज करके आप ड्रा कर सकते हो बच्चों, क्योंकि सिमेट्री का बड़ा ध्यान रखना है ना? सिमेट्री का ध्यान रखना है. अगर आप लोगों ने सिमेट्री प्रॉपर नहीं बनाया होगा तो बच्चों मैं आपको तंग करूंगा. ठीक है? अब दूसरा आएगा कोरोला, विच इज फॉर्म्ड बाय पेटल्स. और सबसे पहले हम बताएंगे पेटल्स का पोजीशन अल्टरनी सेपलस है. अल्टरनी सेपलस होने का मतलब सेपल्स के अल्टरनेट पोजीशंस पे है. अगर पेटल्स हमारे यहां पर होते तो हम इसको बोल सकते हैं एंटी सेपलस है, जबकि एंटी सेपलस नहीं है, अल्टरनी सेपलस है. इसलिए इनका पोजीशन सेपल्स के अल्टरनेटली अरेंज्ड है. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? एंड्रोशिया में 6 स्टेमन्स हैं, जिसमें 2 शॉर्टर स्टेमन्स लेटरल साइड में है. ठीक है? और वो आउटर वर्ल बनाते हैं. ठीक है? और 4 लॉन्गर स्टेमन्स इनर वर्ल में है, और वो एंटीरो पोस्टीरियरली अरेंज्ड है. ठीक है? और देयर आर 4 ग्रीन नेक्टरीज. असल में नेक्टरी का पोजीशन भी देखो बच्चों, जो आउटर वर्ल के अंदर की तरफ है, आउटर स्टेमन्स के अंदर की तरफ है, और इनर स्टेमन्स में बाहर की तरफ ये नेक्टरीज अरेंज्ड है. तो इतना डिटेल देने का आपको जरूरत नहीं है. Lastly comes gynoecium. It is bicarpellary syncarpus. That means it is consisting of 2 carpels or 2 pistil, and these are fused. ठीक है? Fused is unilocular but appearing bilocular because of formation of a false septum called repulum. This is repulum. ठीक है? और these structures which you can see are the ovules, which are attached from the wall of ovary. ठीक है? With the help of a special tissue called placenta, from which they derive their nutrition. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, अब बात करते हैं
कि हेमिसाइक्लिक कंडीशन क्यों है, ये लास्ट में बताता हूं बच्चों। Sepals are not distantly arranged. These are outer, these are inner. ठीक है. Petals are equidistant, thus it is cyclic. Stamens are again not at equal distance. ये अलग साइकिल बना रहे हैं, ये थोड़ा और बाहर की तरफ है. ठीक है. तो उस केस में हम बोलेंगे these are again non-cyclic in nature. फ्लोरल फार्मूला इब्रेक्टियोलेट, यहां पर सिंबल मुझे नहीं मिले थे इसलिए मैंने एसिड में ड्रा कर रहा हूं. एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, calyx consists of 4 sepals in the form of 2+2, corolla consists of 4 petals, endoecium consists of 6 stamens in tetradynamous condition having outer 2 and inner 4. Gynoecium consists of 2 carpels which are fused, the syncarpous condition is there, and because gynoecium is superior, an underline is present at base. So with this our lecture finishes. Thank you very much मेरे प्यारे बच्चों. Have a nice day.